Okay, so metallic bonding, we know which group elements are metals. Group 1, group 2. All transition elements are metals. Group 3 elements are metals. And we have 2 metallic elements in group 4 as well, which are tin and lead. So how these atoms of metallic elements stay together by a metallic bond, वो आज हमें देखना है. देखो, for example, if we have a metal example के तौर पे, let's take sodium element. Sodium we know is a metal, right? So if we see the electronic structure of sodium, its electronic configuration is 2,8,1. So every sodium atom will have one electron in its valence shell. Let's say ये एक sodium atom है, इसके valence shell में 1 electron है. इसके neighboring में we have another sodium atom, or it will also have 1 valence electron in its valence shell. अब ये लोग करते क्या है आपस में, सोडियम का जो न्यूक्लियस है, देखो न्यूक्लियस ऑफ एवरी एटम इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, राइट? तो बोथ द sodium atom have positively charged nuclei at the center. These positively charged nuclei of the neighboring sodium atom, actually they are trying to attract the valence electron of the neighboring sodium atom. मतलब राइट वाला सोडियम एटम लेफ्ट वाले सोडियम एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, बिकॉज इट इज वेरी क्लोज टू द अदर सोडियम एटम. सिमिलरली लेफ्ट वाला सोडियम एटम नेबरिंग सोडियम एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा. And why they are doing it? Because we know unlike charges they attract each other. There is no other option. अगर both the nuclei are positively charged, so they will attract the negatively charged electron if they are passing from. ठीक है, अब इसको इस तरह से समझो. इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करके बनाऊं ना, लाइक दिस, वी हैव अ पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस एट द सेंटर. These are adjacent sodium atoms. Electrons are negatively charged. So what these sodium atoms do, they try to attract the valence electrons of their neighboring sodium atom. जिसकी वजह से ये जो electrons है ना, they actually come out of their valence shell. अब ऐसा नहीं है कि लेफ्ट वाले सोडियम एटम ने ये इलेक्ट्रॉन पूरी तरह जाने दे दिया. अभी भी पूरी कोशिश वो कर रहे हैं कि वो इलेक्ट्रॉन राइट वाला सोडियम एटम ले जा ना सके. इसी तरह वो भी तो यही काम कर रहा था. राइट वाले सोडियम एटम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था. इस पूरे चक्कर में पता है क्या होता है? पूरे चक्कर में ये होता है कि जो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है, कि बोथ सोडियम एटम, the valence electrons actually comes out of their valence shell. We won't say that sodium atom has lost an electron, but it is near to lose that electron. लेकिन वो अभी भी उसने पकड़ा हुआ है. But still, its valence electron, it is not in the valence shell now. It is out of the valence shell. देखो, अब अगर कोई इंसान अगर एक जगह पे रहता है, आप जिस एरिया में रहते हो, यू आर कॉल्ड लोकल्स ऑफ दैट एरिया. ठीक है, तो वैलेंस शेल्स एक्चुअल पोजीशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअल पोजीशन इज द वैलेंस शेल. If they come out of their valence shell, then these electrons would be called as delocalized, because they are not at the place where they should be. That's why these electrons are known as delocalized electrons. However, the sodium atom has not lost their electrons. वो है तो अभी भी उसके पुल के पास, पुल कर रहा है वो उसका न्यूक्लियस उसको, बट इट इज आउट ऑफ इट्स वैलेंस शेल. कभी राइट वाला सोडियम एटम ज्यादा अट्रैक्ट कर लेता है, सो कभी लेफ्ट वाला सोडियम एटम वापस लाने की कोशिश में दोबारा अट्रैक्ट कर लेता है. अब ये तो हमने 2 सोडियम एटम बनाए ना. ये सुसवा बॉन्डिंग बिटवीन 2 मेटालिक एटम्स, ये मेटालिक बॉन्डिंग होती है. अब if we are talking about sodium element, then it means we have all the sodium atoms. So we are talking how all sodium atoms in a sodium element stay together bonded. ठीक है, आपस में भी कर सकते हैं ये. Let's say if we mix sodium and magnesium, they will have this type of bonding. But usually जब हम देखेंगे metallic bonding, so we will see the pure element like magnesium or calcium. If we are talking about magnesium metal, it means
we are discussing how all magnesium atoms in magnesium elements stay together. ठीक है? जी सर। बेसिकली ये जो मेटालिक बॉन्डिंग है ना, देखो अब मैं बताता हूँ हुआ क्या था। आयनिक बॉन्डिंग में we discussed how elements of different atoms are bonded together. Like in ionic bonding, we had two different types of elements, like sodium and chlorine. They are bonded together. ऐसे ही था. In covalent bonding, we saw both the cases. In covalent bonding, we discussed how same elements can stay bonded together, like in chlorine gas. उसमें तो दोनों क्लोरीन एटम्स ही बॉन्डेड थे ना, तो इट वाज कॉल्ड एज क्लोरीन एलिमेंट बिकॉज दोनों क्लोरीन एटम्स ही हैं. Another type of covalent bonding was that where two different elements were chemically bonded, like hydrogen and oxygen in water. Metallic bonding में जो हम mainly discuss करेंगे that how metallic atoms in a particular element they stay together. Let's say if you are talking about sodium metal, तो sodium metal में एक sodium atom तो नहीं होगा ना, बहुत सारे sodium atoms होंगे. How these sodium atoms stay together in any particular metal? So this is by metallic bonding. कोवलेंट बॉन्डिंग में भी हमने दोनों तरह के केसेस देखे थे, डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ भी, सेम एलिमेंट्स के एटम्स के साथ भी. आयनिक बॉन्डिंग में डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ थे. आयनिक बॉन्डिंग में हो ही डिफरेंट एलिमेंट के साथ सकते हैं क्योंकि एक मेटल होता है, एक नॉन मेटल होता है. बट इन कोवलेंट बॉन्डिंग एज टू नॉन मेटल्स कैन केमिकली कंबाइन टुगेदर, तो उसमें दो सेम एटम्स भी हो सकते हैं. जैसे क्लोरीन था Cl2, ऑक्सीजन था O2. डिफरेंट भी हो सकते हैं, जैसे वाटर है H2O, कार्बन डाइऑक्साइड है CO2. इन मेटल्स we will be discussing how same type of atoms stay together in a by having a metallic bond, like sodium metal, magnesium metal में magnesium atoms सारे आपस में bonded होंगे. कैल्शियम मेटल में सारे कैल्शियम एटम्स आपस में बॉन्डेड होंगे, राइट? ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई? सर जी. मगर उनका जो बैलेंस शेल है वो कंप्लीट नहीं है, तो फिर बैलेंस शेल इनका कंप्लीट नहीं है एंड दे आर नॉट एक्चुअली ट्राइंग टू कंप्लीट देयर बैलेंस शेल. They have actually lost the electron. If we see it clearly, तो इलेक्ट्रॉन बाहर तो आ गया है उनके शेल से, लेकिन वो लूज नहीं हुआ कि वो +1 आइन बने उनपे. फिर वो मिडिल में स्टे कर गए हैं जो यस, इलेक्ट्रॉन मिडिल में है, मिडिल में फंस गया है बीच में, मतलब दो सोडियम एटम्स के बीच में ही फंसे हुए. तो सर इसका ये मतलब है कि उनके जो बीच में मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस है वो मतलब लेस है, राइट? यस, लेसर देन आयनिक और कोवलेंट यू कैन से. ओके सर, थैंक यू। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस है कहाँ पे? एक मिनट, एक मिनट, जरा मैं एक चीज बता दूं फिर क्वेश्चन पूछना. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है कहाँ पे? देखो, वी हैव positively charged nucleus of the two sodium atoms which are trying to attract the valence electrons of the neighboring atoms like this. So again we have electrostatic forces of attraction between positively charged nucleus and negatively charged electrons that have come out of the shell, so that's why they are known as delocalized electrons. वो इलेक्ट्रॉन कभी राइट वाले सोडियम एटम के करीब हो जाएगा, कभी लेफ्ट वाले, बट इट विल स्टे इन द मिडिल ऑफ दीस टू एटम्स. यस, अब पूछो, क्या पूछो? अरे इसकी बॉन्डिंग कैसे बनेगी? मैं बना रहा हूँ, वो तो आ रहा है. बॉन्डिंग, इलेक्ट्रॉन लूज और गेन नहीं हो रहा है ना, शेयरिंग हो रहा है. देयर इज एक्चुअली, यू कैन से, स्नैचिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बिटवीन देम, बट नोबडी इज सर रेडी टू लूज इट. जी बात. सर मेटालिक बॉन्डिंग की लाइक रीजन क्या है, लाइक क्यों वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मिडिल में स्टे करते हैं? ओके, मैं बताता हूँ. Zainab, why the valence electron has left valence shell? And Hiba is asking the same thing कि ऐसा हो ही क्यों रहा है? ऐसा इस वजह से हो रहा है because, चलो अब मैग्नीशियम के दो एटम्स हैं. अब ये दो एटम्स, हाउ, देखो जब भी कोई सब्सटेंस की हम बात करते हैं ना, जैसे थोड़ा सा मुश्किल है इस बात को समझना, लेकिन हमें समझ आएगी अल्टीमेटली ये बात.
whenever we talk about any substance, we know in that substance either we will have a pure element or we will be having a compound when two different elements are chemically bonded. तो यही होता है ना सब्सटेंस, या तो सब्सटेंस आपका आयनिकली बॉन्डेड होगा, उसमें आयनिक बॉन्डिंग होगी, या कोवलेंट होगी, या मेटालिक होगी, राइट। आयनिक बॉन्डिंग हमें अच्छे से समझ आ गई, डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में ज्वाइन हो रहे हैं तो वो आयन बना के ज्वाइन हो रहे हैं। लाइक सोडियम एलिमेंट से आया सोडियम एटम +1 आयन बना के, क्लोरीन एटम से आया क्लोराइड आयन नेगेटिव आयन बना के। कोवेलेंट में इफ आई से वी हैव प्योर ऑक्सीजन एलिमेंट, अब हाउ डज ऑक्सीजन एटम्स इन प्योर ऑक्सीजन एलिमेंट स्टे टुगेदर? वो ऐसा तो नहीं है ना, अगर मैं कहूँ कि भाई मुझे सिर्फ ऑक्सीजन एलिमेंट लाके दो, तो यू कैन नॉट से कि ये ऑक्सीजन एलिमेंट और इसमें वी हैव मेनी ऑक्सीजन एटम्स। एक तो ये वो वाला, देखो ऑक्सीजन को छोड़ो, नाइट्रोजन को देखो। अगर मैं आपको कहूँ ना कि ब्रिंग मी नाइट्रोजन एलिमेंट, तो बेटा आप नाइट्रोजन एलिमेंट कहाँ से लाके दोगे? आप नाइट्रोजन एलिमेंट जब ढूंढने निकलोगे तो नाइट्रोजन एलिमेंट जमीन में थोड़ी ना मिलेगा। नाइट्रोजन एलिमेंट एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन गैस। आप सिर्फ एक नाइट्रोजन का एटम मुझे लाके दे नहीं सकते हो नेचर, क्योंकि वो ऐसे एग्जिस्ट ही नहीं करता। वो एग्जिस्ट करता है व्हेन टू नाइट्रोजन एटम्स दे स्टे टुगेदर बाय अ कोवेलेंट बॉन्ड। तो आप N2 मुझे लाके दोगे, आप बोलोगे here is a N2 molecule, nitrogen molecule, but this molecule have two nitrogen atoms. But you asked me for nitrogen element, so I can bring you the nitrogen element in the form of N2, क्योंकि नेचर में एग्जिस्ट ही ऐसे करता है, ठीक है। और उसमें दो नाइट्रोजन एटम ने आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाया। आप मुझे सिंगल नाइट्रोजन एटम लाके दे नहीं सकते, आप नाइट्रोजन गैस का मॉलिक्यूल लाके दोगे जिसमें दो नाइट्रोजन एटम्स होंगे ही होंगे, ठीक है। अब अगर मैं आपको कहता हूँ कि जी हसन बोलिए। सर मैं बोल रहा हूँ एक भी कोवेलेंट बॉन्ड बना नहीं सकते। रिपीट करोगे क्वेश्चन? सर मैं बोल रहा हूँ कि इसमें एक भी कोवेलेंट बॉन्ड बन नहीं सकती। एक भी कोवेलेंट बॉन्ड क्या नहीं हो सकती? सर कुछ नहीं सर इसमें। नहीं नहीं, पूछो, मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया ना, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो क्या पूछना चाह रहे हो। सर मैं क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, मैं बता रहा हूँ कि एक भी कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बन सकती। नहीं समझ आ रहा मुझे, मतलब एक भी कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बन सकती, क्या मतलब एक नाइट्रोजन। किसने बोला था? अच्छा चलो क्लास के बाद एंड में डिस्कस कर लेना, शायद बीच में समझ आ जाए जो हम बात करना चाह रहे हैं ना, शायद सर बीच में जी बच्चे। सर N2 का कैसे मॉलिक्यूल दे सकते हैं, मुझे ये बात समझ नहीं आई। N2 का मॉलिक्यूल कैसे देख सकते हैं? नो नो सर, दे सकते हैं, सब कह रहे कि हम लाइक किसी को लाकर दे सकते हैं N2 का ठीक है, मॉलिक्यूल, आप राइट? एयर में वी हैव नाइट्रोजन गैस, यू विल जस्ट कलेक्ट द एयर एंड यू विल ब्रिंग इट टू मी, केस में नाइट्रोजन है 78%। अब it's up to me how do I separate the nitrogen from the oxygen and hydrogen, but we know in air we have many nitrogen molecules, they are staying together, oxygen molecules, तो मैं उसमें से सेपरेशन करूंगा तो वो तो मेरा काम है ना। लेकिन अगर आप मुझे एयर लाके दोगे तो उसमें नाइट्रोजन है, एंड हाउ कैन वी सेपरेट नाइट्रोजन N2 मॉलिक्यूल फ्रॉम O2 मॉलिक्यूल्स? तो वो सेपरेशन करने के लिए हम लोग मेथड है वो पढ़ेंगे, डिस्टिलेशन वाला। बट ऑफ कोर्स जब आप नाइट्रोजन गैस मुझे लाके दोगे तो उसमें एक मॉलिक्यूल नहीं होगा, देयर विल बी मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स, बट ईच मॉलिक्यूल इज ऑफ नाइट्रोजन गैस। अब एक तो आप उसमें से नहीं पकड़ के दे सकते हो, आई वाज जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल कि अगर मुझे एक चाहिए, अगर मैं कहूँ 10,000 चाहिए, तो आप नाइट्रोजन गैस जो मुझे लाके दोगे उसमें N2 मॉलिक्यूल्स भी होंगे बहुत सारे, लेकिन नाइट्रोजन एटम अलग नहीं घूम रहा होगा। टू नाइट्रोजन एटम दे स्टे टुगेदर बाय अ कोवेलेंट बॉन्ड, एंड वी हैव स्टडीड द बॉन्डिंग ऑफ नाइट्रोजन एलिमेंट। अगर हसन आप ये पूछ रहे थे कि अगर हम नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को ऐसे शो कर दे एक सिंगल बॉन्ड से, तो नाइट्रोजन में क्योंकि अब हमें पता है कि 3 कोवेलेंट ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, तो इसलिए मैंने ट्रिपल बनाया था। सर व्हाट लाइक अगर हम उन बॉन्ड्स को बीच में से ब्रेक कर दें? आप बॉन्ड को बीच में से ब्रेक कर दोगे तो नाइट्रोजन एटम सही है, आप मुझे दे सकते हो, बट वो स्टेबल नहीं है, वो कभी ना वो फौरन बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहा होगा किसी ना किसी के साथ। मैं आपको वो नाइट्रोजन मांग रहा था जो नेचर में एग्जिस्ट करता है N2 की फॉर्म में। हाँ, यू कैन ब्रेक द बॉन्ड एंड यू कैन गिव मी अ नाइट्रोजन एटम, बट दैट पर्टिकुलर नाइट्रोजन एटम वोंट स्टे इन दैट फॉर्म फॉर वेरी लॉन्ग,
it will always try to make a bond with another element. तो वो रिएक्ट करने की कोशिश करता रहेगा हर वक्त। मुझे स्टेबल नाइट्रोजन चाहिए जो कि N2 की फॉर्म में मिलेगा। Got it? सर ये जो सारे किस्म के बॉन्डिंग है, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, ये सारे लाइक एक किसी एलिमेंट के ऊपर लाइक ये बॉन्डिंग हो सकती है या लाइक डिफरेंटली होती है? सेम एलिमेंट्स के बीच में जैसे सेम एलिमेंट्स क्या बॉन्डेड हो सकते हैं, आयनिक बॉन्ड में नहीं हो सकते। आयनिक बॉन्ड हमेशा डिफरेंट एलिमेंट्स के बीच में होगी, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल्स अलग होते हैं, नॉन मेटल्स अलग होते हैं। कोवेलेंट बॉन्डिंग सेम एलिमेंट्स के बीच में भी हो सकती है, डिफरेंट एलिमेंट्स के बीच में भी हो सकती है। जैसे वाटर का H2O, वो डिफरेंट एलिमेंट्स है ना, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कोवेलेंट है। नाइट्रोजन सेम एलिमेंट्स के एटम्स है। गॉट इट? यस सर, थैंक यू। अच्छा, व्हाट अबाउट मेटालिक बॉन्डिंग? मेटालिक बॉन्डिंग भी सेम एलिमेंट्स में होती है। मेटालिक बॉन्डिंग होती सेम एलिमेंट। फॉर नाउ जस्ट रिमेंबर मेटालिक बॉन्डिंग हैपेंस इन सेम एलिमेंट। लेट्स से इफ वी हैव आयरन मेटल, आयरन मेटल अब नेचर में एग्जिस्ट करता है, उसमें सारे के सारे आयरन एटम्स ही होते हैं। जैसे मैंने कहा ना, नाइट्रोजन कैसे एग्जिस्ट करता है, आपने बोला इन द फॉर्म ऑफ N2 मॉलिक्यूल, 2 नाइट्रोजन एटम्स दे स्टे टुगेदर। अब एयर में बहुत सारे नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स होंगे, लेकिन सब कपल फॉर्म में होंगे, N2 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 बना के बैठे हुए होंगे। सही है? लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ ना आयरन मेटल ला के दो, तो प्योर आयरन मेटल में आयरन के एटम्स किस तरह से होंगे? तो बहुत सारे आयरन के एटम्स ही आपस में बॉन्डेड हुए होंगे सेम एलिमेंट के बीच में। अब वो आपस में किस तरह से बॉन्डेड हुए हुए होंगे? वो हुए हुए होंगे बाय मेटालिक बॉन्डिंग। वो मेटालिक बॉन्डिंग किस तरह से हुई हुई है? देखो, 2 आयरन के एटम जो हैं, उनके जो जितने भी आयरन के एटम्स हैं, इस अभी सामने जो आपको दिख रहे हैं, दे ऑल हैव पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, बिकॉज इन न्यूक्लियस दे हैव प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल बट प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज, so they all have positively charged nucleus. अब अगर 2 आयरन एटम्स को मैं एक जगह पे एक साथ रख दूंगा ना, तो वो पता ही क्या करते हैं, बराबर वाले आयरन एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि वो आदत से मजबूर है। इट हैज अ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, डेफिनेटली बाय डिफॉल्ट इट विल अट्रैक्ट एनी नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन पासिंग नियर इट। देखिए, दूसरे आयरन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके पास से गुजर रहा है ना, तो वो उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, और उस कोशिश में क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन नेबरिंग आयरन एटम की शेल से निकल के बाहर आ सकता है। और जब वो बाहर आएगा, तो ऐसा नहीं है कि जो राइट वाला आयरन एटम है वो अपने इलेक्ट्रॉन को इतना इजीली जाने दे देगा, वो भी पकड़ के रखेगा उसको। तो होगा क्या कि जो नेबरिंग आयरन एटम्स हैं, वो एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को जब अट्रैक्ट करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस शेल से निकल के बाहर आ जाते हैं। अब वो बाहर तो आ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो बस निकल के बाहर ही निकल गए, वो बीच में फंस जाते हैं। दोनों एक दूसरे से लड़ाई करते रहते हैं कि मेरा मेरे पास रहेगा, मेरे पास रहेगा। तो इसकी वजह से दोनों के वैलेंस शेल में नहीं रह पाता, वैलेंस शेल से बाहर आ जाता है। अब जब वैलेंस शेल से बाहर आ रहा है, तो बॉन्डिंग कैसे हुई? बॉन्डिंग इस तरह से हुई, देखो, आयरन का जो एटम है उसका न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है। अब दोनों के इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आ गए। अब दोनों के न्यूक्लियस जो है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को चाह रहे हैं कि मैं दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लूं। राइट वाला आयरन एटम भी यही चाह रहा है, लेफ्ट वाला भी यही। तो ना राइट वाला छोड़ने के लिए तैयार है, ना लेफ्ट वाला छोड़ने के लिए तैयार है, जिसकी वजह से इनके बीच में बॉन्ड बन गया। भाई, अगर मेरा हाथ में एक मार्कर है, ठीक है, मैं आपको अगर वो मार्कर आप एक एंड से पकड़ो, मतलब एक स्टिक है मेरे हाथ में, if you pull the stick from the other end towards your side, and if I hold the one end of the stick on my hand and I pull it towards my side, तो ना आप छोड़ोगे ना मैं छोड़ूंगा। जब तक हम दोनों में से कोई छोड़ेगा नहीं स्टिक, तो क्या हम लोग मूव हो सकते हैं? हम लोग एक दूसरे के साथ बॉन्डेड हो जाएंगे, अनलेस के हम में से कोई गिव अप करे। ये यहाँ पे भी हुआ है। Cl2 में आयशा कोवेलेंट बॉन्डिंग है। So, sir, Sir? metallic bonding only happens in the same elements, right? They don't happen in like different elements. Yes, for now we can say metallic bonding will happen in the atoms of the same element. But if we mix 2 metals together, the same thing will happen. Let's say, Larib, if we have a sodium atom and if we have an iron atom mixed together, both will do the same thing. Sodium has a positively charged nucleus, iron also have a positively charged nucleus. Sodium will try to attract the valence electron of iron towards itself, and iron will try to attract the valence electron of sodium towards itself. So they will keep attracting each other's electrons. Again,
that can be called as metallic bonding, और वो हम alloys को discuss करते वक्त पढ़ेंगे. But usually when we talk about metallic bonding, we see metallic bond between the atoms of the same element. Got it? Sir, जी बच्चे अभी है बोलो. positively charged nucleus तो हर atom में होता है, तो how is like metallic bonding only for like specific elements? Yes, you're right. Nucleus तो सारे atoms के पास है. But it depends upon the requirement of atoms as well. Iron or sodium or any metallic atom is not actually trying to gain the electron, because sodium atoms together they are attracting the valence electron of the neighboring atom, but उनका originally वो plan नहीं था. मतलब even if the neighboring sodium atom loses its electron, वो electron lose करके कहता है बराबर वाले को अच्छा तुम रख लो, तो वो फिर भी पूरा gain नहीं कर सकता अपने valence electron में उसको. So this is sort of a weak kind of attraction. लेकिन नाइट्रोजन में क्या होता है, नाइट्रोजन में या किसी, अगर मैं HCl की बात कर रहा हूँ, तो हाइड्रोजन एटम इज नॉट लूजिंग इट्स इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन एटम इज नॉट आल्सो लूजिंग इट्स इलेक्ट्रॉन. तो इसमें भी तो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस की वजह से कोवलेंट बॉन्ड बना था ना. हियर दे बोथ डिसाइडेड कि हम शेयरिंग कर लेते हैं. मतलब दोनों एटम के जो न्यूक्लियस थे उन्होंने इतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा हुआ था एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को कि वो बीच में ऐसा शेड पेयर बन गया था, वो मूव नहीं हो सकता था. लेकिन यहाँ पे पता है क्या हुआ है, जैसे ये आयरन के एटम्स है ना, अब दो इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले आयरन एटम से आए ना, नीचे वाले आयरन एटम भी इनके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन थोड़ा कभी नीचे वाले आयरन एटम के पास चले जाएंगे, कभी ऊपर वाले आयरन एटम के पास. तो वो इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड है, दे कैन मूव अबाउट एडजेसेंट एटम्स. कोवलेंट बॉन्डिंग में शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बीच में फंस गया है, क्योंकि न्यूक्लियस जो है वो उसको छोड़ ही नहीं रहे. अब सोडियम क्या कर रहा है, सोडियम ने अट्रैक्ट तो कर लिया बराबर वाले सोडियम एटम का इलेक्ट्रॉन, लेकिन उसके पास इतनी पुलिंग पावर है ही नहीं कि वो अट्रैक्ट करके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ गेन कर ले. वो थोड़ा बहुत अट्रैक्ट करेगा, निकाल तो दिया उसने, लेकिन निकालने के बाद इतनी पावर ही नहीं है उसके न्यूक्लियस के पास कि वो इलेक्ट्रॉन को अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक लिया, अपने वैलेंस शेल तक नहीं ला सकता उसको. बस निकल गया, तंग कर रहा है वो बराबर वाले को, लेकिन अपने पास लाने की भी हिम्मत नहीं है उसमें. रामीन आंसर हो गया आपका. आई जस्ट टोल्ड यू कि it can happen between the atoms of the same element as well as between the atoms of different element, but both should be metallic. However, for now you just have to remember that it happens between the atoms of the same element. That would make your work easier abhi. सर इनका चार्ज वैसे पॉजिटिव ही होता है ना? इसका चार्ज न्यूक्लियस सारे एटम की न्यूक्लियस का चार्ज पॉजिटिव होता है. Sir? जी बेटा. Sir, can you tell me the name of one element in which both metallic and covalent bonding can occur? Both ionic and covalent bonding. No, covalent and metallic bonding. None, because covalent bonding takes place between non-metals and metallic bonding is between metallic atoms. A metal cannot make a covalent bond. For us in O level, a metal will not make a covalent bond. Okay, sir. And sir, what's like the benefit of like metallic bonding? The properties of metallic bonding, of properties of metals actually depend upon metallic bonding. Now we cannot say कि क्या benefit है, but that it is what we are finding in nature. It exists like this. So we are studying कि वो कैसा होता है. हाँ, उसकी बेसिस पे हम मेटल्स का जो प्रॉपर्टीज हैं वो नॉन मेटल से डिफरेंट क्यों होती है वो समझ सकेंगे. Got it? Yes, sir. Thank you. हाँ. सर Okay. जी बेटा. ज़ैनब. सर ये इलेक्ट्रॉन मिडिल में ही रहते हैं या फिर मूव भी करते हैं? मूव करेंगे, आगे पीछे होंगे थोड़ा, कभी नीचे वाले एटम के पास, कभी ऊपर वाले एटम के पास, कभी राइट वाले, कभी लेफ्ट वाले. दैट्स व्हाई दे आर नोन एज delocalized electrons, और sometimes they are also known as mobile electrons. ओके सर. और सर ये क्या होता है? बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन, ठीक है. वो मैं बता रहा हूँ, इन्हीं को कहते हैं. और मुझे सर एक और चीज पूछनी थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की डेफिनेशन बता दें प्लीज.
force of attraction between oppositely charged ions. Okay, sir. Force Thank of you. attraction between oppositely charged ions.